I welcome you all. We all know that today is the foundation day of West Bengal Child Protection Rights Commission. This Child Protection Rights Commission has been established to protect the rights of the children. Any complaint, any abuse, anything related to children can, in anywhere, in domestic circumstances, in school circumstances, any child, any person who is less than 18 years, any complaint related to that may be filed to WBPCR. They can take up any complaints to Omoto. So they are established to protect the rights of the children. So today is State Child Rights Protection Day, and we are thankful to the Commission that they have chosen Darjeeling as the venue to celebrate this day. This year's theme is that stay safe online. We know we all are addicted to mobiles these days. We know we surf, we do Google, there are many online chatting apps. So how can we stay online and safe? So this is the theme of this year, and I would like the children to go to listen to what is being told here very attentively, so that you are more informed, more empowered and protected. Once again, I thank you all for coming here. I end my speech and open the platform to the rest of the members. Thank you. दार्जिलिङ जिल्ला प्रशासन र वेस्ट बेङ्गल कमिसन फर प्रोटेक्सन अफ चाइल्ड राइट्सको संयुक्त पहलमा शुक्रबार दार्जिलिङमा स्टेट चाइल्ड प्रोटेक्सन दिवस पालन गरियो। स्थानीय गोर्खा रङ्गमञ्च भवनमा पालन गरिएको यस समारोहमा उत्तर बङ्गालका 9वटा जिल्लाका विद्यार्थीले विविध कार्यक्रममा भाग लिएका थिए। यस अवसरमा बाल अधिकार के हो भन्ने बारे पनि विस्तृत रूपमा जानकारी गराएको थियो। बाल अधिकार बारे जागरुकता फैलाउने उद्देश्यले नै यो कार्यक्रम दार्जिलिङमा पालन गरिएको आयोजक समितिले बताएको छ। यस अवसरमा सिलगढी नगर निगमका मेयर गौतम देवका साथै विभिन्न विभागीय शीर्ष अधिकारीहरूको उपस्थिति रहेको थियो। And today we are observing a Child Protection Day instead of 9th of June of this year. I think last year this similar kind of program is being organized by the Commission at Kalimpong, our newly formed district, bifurcating Darjeeling. Today here, Tulika Das Madam, Chairperson of this Commission, former Chairperson Sudeshna Roy, my old friend Soumitra Roy, District Magistrate Darjeeling, and the SP Darjeeling, Ananya Chakraborty, several other very prominent personalities, Poshun Bhumi, and all others, dignitaries on the dais, and especially the children coming from various districts of North Bengal of the dais. I express my heartfelt thanks to the Commission for being invited me in this occasion to present. And yesterday in the night, I reached here, and I'm very much privileged here to address this gathering, especially the children, those who are here to attend this very meaningful program. Several matters to be discussed, especially protection, sanctity, and how to use the internet, and how the children will be in a safe position using internet. That is there. Amra nete thakbo kintu jale porbo na. The beautiful Bengali tagline here, and the some experts
some persons, those who are working on it, they will be deliberating and it will help a lot and making some knowledge base to the children and other persons, those who are present here. The commission is working against all kind of children abusement, and they are working, moving in the various parts of the state. And just now we are discussing outside the hall in an informal way, and I take the opportunity to put my deliberations here in presence of so many members, advisors, and other persons that Siliguri is the one of the most important part of our country, and it's the entry point, sharing several international and national borders. So child abusement, trafficking, misuse of drug addiction is the very alarming problem in the days, and the commission should take all possible cares for making awareness, for taking some steps with the help of local bodies, police, district administration, and of course with the help of citizen as a whole. I like to request the commission just once visit Siliguri, taking at least 2-3 days, visit some place, vulnerable areas, and then you can find out the real challenges we are going to face in the days to come. I wish all the success of this very colorful and meaningful programs today. And with this, I like to conclude. Thank you, everybody. नमस्ते सबको। दार्जिलिंग में जो लोग हैं, शिलीगुड़ी में जो लोग हैं, सबको बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि हम आज दार्जिलिंग में WBCPCR वेस्ट बंगाल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स के तरफ से और दार्जिलिंग का जो एडमिनिस्ट्रेशन है उनके सहयोग में दोनों एक साथ हम जो हमारा कमीशन का फाउंडेशन डे है 9 जून हम कर नहीं पाए हैं, तो आज यहाँ दार्जिलिंग में हम वो सेलिब्रेट कर रहे हैं, और एक ही साथ हमारे फाउंडेशन डे के साथ साथ ये स्टेट चाइल्ड प्रोटेक्शन डे भी है। तो यहाँ पे जो 9 जिलाएं हैं, मुर्शिदाबाद से शुरू होता है तो कालिम्पोंग तक, जो नॉर्थ बंगाल के 9 डिस्ट्रिक्ट्स है, वहाँ से करीब 350, ये 9 डिस्ट्रिक्ट मिला के प्राय 350 बच्चे यहाँ है एंजॉय करने के लिए और ये दिन ऑब्जर्व करने के लिए। उनके साथ साथ 100 से 150 एडल्ट्स भी है, तो करीब 500 लोग हम इकट्ठा हुए हैं यहाँ पे। और ये शुरुआत हुआ था, ये प्रोग्राम, आज के प्रोग्राम एक फ्लैश मॉब हमने किए मॉल में। सभी जो जनरल लोग हैं वो सब को मालूम पड़ा कि चाइल्ड राइट्स क्या है, चाइल्ड प्रोटेक्शन क्या इश्यू है, WBCPCR क्या है। दार्जिलिंग में भी ये चाइल्ड राइट्स का काम हो रहा है। ये अवेयरनेस के लिए हमने शुरू किए थे फ्लैश मॉब में, और दार्जिलिंग का लड़का लड़कियां उन्होंने प्रोग्राम किया। 3-4 गाने और परफॉर्मेंस के बाद हम यहाँ चले आए, और ये भानु भवन ऑडिटोरियम में हम सारा दिन ये स्टेट चाइल्ड प्रोटेक्शन डे हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। हमारे साथ बहुत सारे डिग्निटरीज थे, जैसे कि मैं शुरुआत करना चाहती हूँ कि हमारा शिलीगुड़ी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के जो मेयर है श्री गौतम देव जी, वो हमारे साथ थे इनॉग्रेशन प्रोग्राम में। और एसपी
दार्जिलिंग एसपी उन्होंने योगदान किए थे। जीटीए का जो सेक्रेटरी है वो थे, CMOH उन्होंने थे, बहुत सारे डिग्निटरीज थे। और कलकत्ता से जो डायरेक्टरेट है DCRT, उनका जो डायरेक्टर है उन्होंने आए थे। हमारा WBCPCR के जो एडवाइजर्स है, कमिटी मेंबर्स है, उन्होंने आए थे। और ये जो सेलिब्रेशन हो रहा है, जो प्रोग्राम हो रहा है, उनमें यूनिसेफ का सहयोगिता है। जैसे कि डिपार्टमेंट WCD एंड SW जो हमारा डिपार्टमेंट है वो जैसे कि हमें सहायता करते हैं, वैसे ही यूनिसेफ ये प्रोग्राम करने के लिए सहायता किए हैं। तो उनका जो चीफ है वेस्ट बंगाल ऑफिस का, यूनिसेफ वेस्ट बंगाल ऑफिस, उनका चीफ भी प्रभात कुमार जी, उन्होंने आए थे। और आप सब मीडिया के सब दोस्त लोग सब थे, तो सबको बहुत बहुत धन्यवाद आज के प्रोग्राम में रहने के लिए। जैसे कि हमारा ये प्रोग्राम का थीम है स्टे ऑफलाइन, स्टे ऑनलाइन, स्टे सेफ ऑनलाइन। और बंगाली में हम बोलते हैं इसको कि नेटे थाकबो किंतु जाले पड़बो ना। तो इसमें एक ट्विस्ट भी है। जाल मतलब वेब, यू नो ना, डार्क वेब, डीप वेब, जहाँ पे इलीगल काम होता है और जानकारी नहीं रहने से बच्चा लोग उसमें घुस जाता है और वो साइबर क्राइम में जुड़ जाता है और उसके ऊपर साइबर क्राइम हो जाता है। एडल्ट लोगों को भी जानकारी होना चाहिए। तो हम चाहते हैं कि ये जो स्टे सेफ ऑनलाइन, ये जो अवेयरनेस जो मुद्दा है, वो भावना, वो मुद्दा सबके पास पहुंचे और सभी लोग सचेतन हो कि हमको तो इंटरनेट यूज करना है। बड़े हो या बच्चे हो, बच्चे को तो करना है, एजुकेशन के लिए है, एंटरटेनमेंट के लिए है, और फ्रेंडशिप बनाता है इंटरनेट में। हाँ, और सोशल मीडिया में ज्यादा से ज्यादा रहते हैं, ये तो हम स्टॉप नहीं कर सकते। हाँ, लेकिन हम जरूर इसको सेफ बना सकते हैं। हाँ, तो वो जानकारी सबके पास पहुंचना चाहिए। और जैसे हम लोग बोलते हैं कि डिजिटल लिटरेसी के साथ साथ ये जो डिफरेंट जो अलग अलग जो वेब एरियाज है, इंटरनेट जो प्लेटफॉर्म है, वहाँ में ना एंड यूजर एक प्रोटेक्शन सिस्टम होता है कि उसमें जाएंगे तो मेरे लिए प्रोटेक्शन क्या है, तो वो जानकारी भी सबके पास पहुंचना चाहिए। हम मोबाइल तो यूज करते हैं, हम सुबह से रात तक इंटरनेट में लगे रहते हैं, लेकिन हम ये सेफ्टी के बारे में नहीं जानते हैं। जैसे कि एसपी ने हमारे प्रोग्राम में बताया कि साइबर हाइजीन क्या क्या, जैसे हम स्वस्थ के ऊपर चर्चा करते हैं ना, हमारा खुद का स्वास्थ्य के ऊपर कि हम स्वास्थ्य में कैसे अच्छा रह सकते हैं, वैसे ही साइबर हाइजीन बोलता है। हाँ, कि हम साइबर में जाएंगे, इंटरनेट में जाएंगे, लेकिन निरापद कैसे रहेंगे, सुरक्षित कैसे रहेंगे। तो ये सब जानकारी और भी ज्यादा लोगों के पास घर घर में पहुंचना चाहिए, तब ये साइबर क्राइम से, या जो हम चर्चा कर रहे हैं कि साइबर सेफ्टी, ये हमारे बच्चों के ऊपर आएगा और वो सेफ रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे। जो चाइल्ड प्रोटेक्शन की बात है, चाइल्ड प्रोटेक्शन की जो बात कर रहे हैं आप लोग, हाँ, यहाँ पर तो जो चाइल्ड सेक्सुअल हैरेसमेंट हो या चाइल्ड लेबर हो, उसके लिए तो काम होते देख रहे हैं हम लोग। लेकिन जो मंदिर के बाहर जो बच्चे लोग भीख मांगते हैं, उन लोगों को प्रोटेक्शन के लिए कुछ काम नहीं हो रहा है, कभी नहीं देख रहे हम लोग। हम चाइल्ड अब्यूज बोलते हैं इसको, और ये चाइल्ड अब्यूज तो रोकते हैं हम लोग। जैसे कि हमारा जो WBCPCR है वो एक स्टैट्यूटरी बॉडी, ऑटोनोमस बॉडी है, और हमारा काम है कि जो सचेतनता है वो और भी बढ़ाना। ऐसा कोई भी कंप्लेन आने से ही तुरंत हम वो एड्रेस करते हैं। जैसे कि क्या करते हैं हम कोई भी कंप्लेन कहीं से भी आए, हम तुरंत उसके ऊपर सुओ मोटो कॉग्निजेंस लेते हैं और हम इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट चाहते हैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के पास और प्रशासन के। जैसे कि सोचिए कि दार्जिलिंग में ऐसा होगा तो हम DM को चिट्ठी करेंगे और SP को चिट्ठी करेंगे और पूछेंगे कि ये हमारे पास कंप्लेन आए हैं, हाँ ये सच है कि झूठ है अलग बात है, लेकिन इन्वेस्टिगेशन
रिपोर्ट हमें चाहिए। तो एक इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट हम चाहते हैं और उसके वो इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट के ऊपर बेस करके नेक्स्ट स्टेप हम करते हैं। हाँ, बहुत सारे इलीगल काम है जहाँ पे हम खुद FIR करते हैं, खुद स्टेप लेते हैं, हाँ, खुद कोर्ट में ये जो इलीगल काम हो रहा है, जहाँ पे बच्चा लोग निरापद नहीं है, बच्चा लोग सुरक्षित नहीं होते हैं, बच्चा लोग के ऊपर वायलेशन, उनका राइट्स का वायलेशन होता है, तो वहाँ पे हम तुरंत कार्यक्रम करते हैं। स्टेप बाय स्टेप चाहते हैं कि सभी घर में, हमारे राज्यों का सभी घर में सभी बच्चा सुरक्षित रहे। और लॉन्ग वे टू गो ना, बहुत सारे काम करना बाकी है। हाँ, और हम चाहते हैं और कैसे हम और भी लोगों के पास पहुंचे। मीडिया का बहुत बड़ा रोल है। जनरली हम बोलते हैं कि मीडिया हमारा पार्टनर है। आप जागरूकता लाते हो समाज में, तो आप भी चाइल्ड राइट्स के बारे में रेगुलर चर्चा कीजिए, रेगुलर पूछिए, प्रश्न पूछिए। हाँ, देन कलेक्ट द इंफॉर्मेशन, क्या चल रहा है, raise the issue and then we will of course address that and we will हम लोग try our best, हाँ, कि कैसे सरकार को साथ लेकर हम ये काम कर सकते हैं। कंप्लेन करने का प्रोसेस, कंप्लेन करने का प्रोसेस है एक यहाँ पे है सब, देखिए एक व्हाट्सएप लाइन है जहाँ पे लिखा है 9836300300, ये व्हाट्सएप नंबर है। कोई भी व्हाट्सएप में जाते जाते आपने देखा, जैसे कि अपनी टेम्पल के बारे में बोला है, तो किसी को लगा कि ये बच्चा का तो हाल बहुत खराब है, ऐसे कैसे बच्चा लोग रहते हैं, तो वो तुरंत वहां से व्हाट्सएप कर दिया है 9836300300 कि यहाँ पे मैंने देखा और मुझे बहुत खराब लगा, आप कुछ कीजिए। ऐसे ही करते हैं ना कंप्लेन। तो वो है। दूसरा है कि WBSCPCR@gmail.com, जीमेल में हमारा ईमेल ID है, तो कोई भी ईमेल कर सकते हैं। हाँ, और चिट्ठी भेज सकते हैं, जहाँ पे हमारा कलकत्ता में WBCPCR को कर सकते हैं, और हर एक जिला में WCPCR के काम करते हैं डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट, जहाँ पे डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन ऑफिसर होता है, CWC चाइल्ड वेलफेयर कमेटी होता है। तो हमें हमारे पास बाद में पहुंचे, पहले तो आपका जिला में जो लोग ये काम आगे बढ़ा रहे हैं, ये काम कर रहे हैं, बच्चों को सुरक्षित करते हैं, तो उसको पहले इन्फॉर्म कीजिए और देखिए वो कैसे आपको सहायता करे, और उनको लगेगा तो वो जरूर हमें इंफॉर्मेशन भेजेंगे। तो दोनों ही हो सकता है, WBCPCR को भेजने से भी हम डिस्ट्रिक्ट को ही पूछेंगे कि क्यों तुम्हारा डिस्ट्रिक्ट से ये कंप्लेन आया है, तुम ढूंढो और ढूंढ के इन्वेस्टिगेशन करो और हमें रिपोर्ट भेजो। और आप डायरेक्ट भी CWC या DCPO इनके साथ कर सकते हो, जैसे कि DM को आप कंप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, प्रोग्राम आपने दार्जिलिंग में करने के लिए सोच बनाया, क्यों, क्या लगता है आपको दार्जिलिंग में इस चीज को कोई नेग्लेक्टेड हो रहा है? नहीं, लास्ट ईयर हमने कालिम्पोंग में किया था ये दिवस, लास्ट में कलकत्ता में हमारा स्टेट ऑफिस है, तो कलकत्ता में बैठ के हमें लगता है कि कलकत्ता के नजदीक जो सब डिस्ट्रिक्ट है वो तो लगातार कुछ ना कुछ कलकत्ता में होने से वो आ सकता है, लेकिन नॉर्थ बंगाल इज वेरी मच नीडेड। हम सबको कलकत्ता से दूर दूर जो डिस्ट्रिक्ट है वहां पे काम करना है, वहां का जो जरूरत है उसे हमें ध्यान में लाना चाहिए और उन तक पहुंचना चाहिए। तो दार्जिलिंग इज वन ऑफ द टाउन, एंड वो भी है कि डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी हाँ बोल दिया और उन्होंने बहुत मदद किया, क्योंकि समझ सकते हैं ना कि कलकत्ता बैठ के तो या भानु भवन में हम ये प्रोग्राम एकदम पूरा के पूरा 100% हमारे दायित्व में हम नहीं कर सकते हैं। तो डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन हमारे साथ पूरा कोऑपरेट किया, और यहाँ पे जो हम वहाँ से बोला है VC हुआ है, हम रेकी में भी आए थे मार्च अप्रैल में, शायद हम आकर पूरा प्लानिंग करके गया। तो हर एक डिस्ट्रिक्ट में कुछ ना कुछ करते ही है हम लोग। और अब और एक चीज करते हैं हम ना, एक बहुत सारे अवार्ड देते हैं सारा हमने थ्रू आउट द ईयर। अभी जो दिया है ये पुलिस को दिया है, हम बोलते हैं चाइल्ड फ्रेंडली पुलिस, जो बच्चों के सुरक्षा के लिए काम करता है लगातार, और बच्चों के साथ दोस्ती बनाते हैं, बच्चों की सुरक्षा के लिए बहुत सारे काम करता है। तो ऐसे 4 पुलिस
ऑफिसर, उन्होंने अवार्ड मिला उनको। और अब जानते हैं चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशन CCI बोलते हैं, जहाँ पे जो बच्चा का सुरक्षा या निरापत्ता का जरूरत है, जैसे कि आपने बोला ना वो टेम्पल के सामने, तो वो बच्चा को हम देखेंगे और कोई उनका जरूरत को एड्रेस करेंगे तो CWC के साथ उनका मुलाकात होगा। CWC क्या करेगा, उनको लेके जाएगा चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के सामने, बातचीत होगा बच्चा क्या चाहते हैं। उसके बाद एक चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशन जो होम होता है, जहाँ पे बच्चा पढ़ाई लिखाई करते हैं, स्वास्थ्य के ध्यान देता है, पुष्टि के ध्यान देता है, उनका इंटरटेनमेंट के, जैसे हम बोलते हैं ना चाइल्डहुड, बच्चा जैसे बढ़ना चाहिए, जो एनवायरनमेंट में उनको रहना चाहिए, वैसा एनवायरनमेंट हम होम में देते हैं उनको। तो ऐसा 2 होम को हम अवार्ड देते हैं। मैडम, ये आपको लगता है कि नॉर्थ बंगाल में ये जो प्रॉब्लम ज्यादा नहीं, ज्यादा नहीं है, हाँ कुछ तो है, लेकिन देखिए ज्यादा की कम ये नहीं, लेकिन प्रोन मीन्स झुकीपूर्ण अवस्थान में है, क्योंकि बॉर्डर एरिया है। हाँ, वो आंकड़ा देखेंगे तो शायद आपको ठीक बोल पाएंगे, ऐसे तो नहीं बोलना चाहिए मुझे कि ज्यादा है कि कम है, लेकिन जरूरत तो है यहाँ पे और भी अवेयरनेस करने का, लोगों के पास पहुंचने का, लोगों को सचेतन करने का। जैसे कि दूसरा डिस्ट्रिक्ट में होता है, वैसे ही नॉर्थ बंगाल में हमें पहुंचना ही होगा। नॉर्थ बंगाल लिए भी हम, जैसे कि हम यूनिसेफ के साथ बहुत क्लोजली काम करते हैं। आप जानते भी है शायद कि यूनिसेफ का बहुत सारे प्रोग्राम टी गार्डन में होता है। तो आज ही बात हो रहा था, जो चीफ आए हैं, तो हम पहले भी किए थे बहुत सारे सचेतनता का प्रोग्राम, और आगे भी करेंगे। शायद इस साल में ही टी गार्डन लेकर हम काम करेंगे। आबुधाबीको निम्ति सेक्युरिटी गार्ड चाहिएको छ। PSBD, मेल हाइट 5.7 इन्चेस, क्वालिफिकेसन 10 पास, उमेर 21 देखि 40 वर्षसम्म, स्यालेरी 26 दिनको निम्ति 59,400, 30 दिनको निम्ति 67,400, फ्री एकोमोडेसन, ट्रान्सपोर्टको सुविधा पनि रहेको छ। इन्टरभ्यू 3 जुलाई 2024 बुधबारको दिन, फ्युचर भिजन कन्सल्टेन्सी, नियर इस्कन मन्दिर, सिलगढी। कन्ट्याक्ट 9800 866 855।